Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Bismillah. Welcome back here. So today we are going to discuss the parallel resonant circuit. In your previous lecture, we discussed about the series resonance circuit. There we discussed the series LCR circuit and resonance in it. Whether it is series resonant circuit or parallel resonant circuit, the concept is the same. That is, there will be no phase difference between the voltage and that of the current. That is, your circuit will mostly behave as the resistive circuit, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था. So therefore जो हमारे पास जो सर्किट है वो मेनली कौन सा सर्किट बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज प्योरली एज दी रेजिस्टिव सर्किट. तो यहाँ पे हमें पढ़ना है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. तो उसके लिए मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके सामने रखी है. दैट इज वी आर कंसिडरिंग एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and a capacitor of capacitance C, which are connected in parallel fashion with each other, and this whole combination is connected with the this alternating voltage source, and this alternating voltage source is providing us the voltage of the type E is equivalent E naught sin omega t. You know that. So therefore ये जो हमारे पास alternating source of EMF है, ये हमें voltage provide कर रहा है of the type E is equivalent E naught sin omega t, which usually आपको पता है चूंकि यहाँ पे parallel combination है, which will remain the same, only the current will change through these two components. So therefore हम कहते हैं कि let if I यहाँ से पास होता है, कि I current पास होता है सर्किट से, so that I will be divided into simply IL, that is the current passing through the inductor, and IC, that's current passing through the capacitor. So the total current जो यहाँ पे होगा, the total current will be simply given by I is equivalent IL plus IC. Now depending upon the previous lectures, जो हमने already previous lectures पढ़े हैं, आपको पता है वहां पे हमने पढ़ा था कि एक्चुअली इन द इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. यानी जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट है वहां पे वोल्टेज लीड करता है करंट को बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2, व्हाइल एज इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इट इज द करंट व्हिच इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द सेम एंगल, दैट इज बाय पाई बाय 2. तो देयरफॉर वी नो दैट फॉर इंडक्टर the voltage usually leads, और यहाँ पे मैंने लिखा है current in inductor lags behind the voltage by pi by 2. So therefore the inductive current, that is IL, will simply be given by I naught sin omega t minus pi by 2. क्योंकि यहाँ पे करंट की रिलेशन हमने लिखी है, तो therefore perhaps यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 आएगा. अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखता तो प्लस पाई बाई 2 आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने करंट की इक्वेशन लिखी है, so therefore IL will be equivalent I naught sin omega t minus pi by 2. Now we know this is the current, the P current, we can replace it. क्योंकि आपको पता अगर simply resistive ohm's law हमें पता है for resistive purpose के लिए, resistive devices के लिए अप्लाई होता है, वो सिंपली अप्लाई होता था, वो सिंपली इक्वल होता था I is equivalent to V by R. लेकिन चूंकि यहाँ पे हम इंडक्टर की बात करते हैं, सो therefore चूंकि वोल्टेज E naught है, therefore it will be E naught by रेजिस्टेंस. यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होती है इंडक्टर की, that is इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, whereas it is sin 90 minus theta, या तो therefore it will become minus cos omega t, that's minus cos theta, that's minus cos omega t. Similarly in capacitive circuit, हम कैपेसिटिव सर्किट में हमें पता होता है कि एक्चुअली वोल्टेज क्या करता है, वो लैग होता है करंट से, वहां पे करंट लीड करता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. सो देयरफॉर यहाँ पे कैपेसिटिव करंट हमने लिखा IC इज इक्विवेलेंट I naught sin omega t प्लस पाई बाय 2 बिकॉज़ इट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2. तो देयरफॉर वंस अगेन आई विल रिप्लेस दिस I naught, once again it will be replaced like E naught divided by the capacitive reactance, and this is sin 90 plus theta, it is plus cos theta, that's cos omega t. Now simply जो टोटल करंट यहाँ पे है, that is summation of the current through inductor plus the current through capacitor. तो अब हमने दोनों इक्वेशन यहाँ पे निकाली, IL भी निकाला, IC भी निकाला, तो इन दोनों का वैल्यू हम इसमें डाल देंगे. तो therefore the total करंट कितना बनेगा, that will be simply this plus this, that is E naught XL minus cos omega t plus E naught XC by cos omega t. Now E naught cos omega t, E naught cos omega t, तो इसको हम क्या लेके आएंगे, कॉमन लेके आएंगे, बाहर लेके आएंगे, तो बचा क्या, चूंकि ये 1 by XL बचा था, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ये प्लस 1 by XC, तो इसको मैंने पहले लिखा, इट्स 1 by कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस 1 डिवाइड बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस. नाउ आपको पता है XC किसके बराबर होता है, दैट इज 1 by C ओमेगा. सो देयरफॉर दैट इज व्हाई चूंकि ये 1 डिवाइड बाय XC है, तो वो बन जाएगा 1 डिवाइड बाय, वो थर्ड टर्म बन जाएगी, तो वो ऊपर चली जाएगी. सो देयरफॉर E naught cos omega t ऐसे ही, सो देयरफॉर ये ऊपर आएगी ओमेगा C, क्योंकि XL को पता है वो आपको ओमेगा, इट विल बिकम 1 by omega L. सो दिस इज द टोटल करंट व्हिच यूजुअली पास थ्रू दिस रेजोनेंट पैरेलल रेजोनेंट सर्किट. नाउ इसमें जो मेन कंडीशन, चूंकि हमें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस देखनी है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि चूंकि इस सर्किट में जो करंट है वो जीरो कब बनता है,
यानी कि हमारा करंट जो है वो कब जीरो बनेगा, तो सिंपली इट विल दिस करंट विल बिकम जीरो व्हेन दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। जब हमारा ये इक्वेशन का ये जो पार्ट है ना, जब ये पार्ट जीरो बन जाएगा तो करंट ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगा। सो देयरफॉर हम कहते हैं नाउ I इज जीरो इफ ओमेगा c माइनस 1 बाय ओमेगा l इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर हम क्या काम करेंगे, सो देयरफॉर ओमेगा c विल बी गेट ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो जाएगा इस जानिब। सो ओमेगा c इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा l, दिस ओमेगा एंड ओमेगा विल गेट मल्टीप्लाइड, सो इट विल बिकम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय lc और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट lc। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा को आप रिप्लेस कर सकते हो 2 पाई न्यू, इसका वैल्यू आपको पता है। सो देयरफॉर न्यू किसके बराबर बनेगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट lc। सो देयरफॉर अगर आपको याद होगा कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी, इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो देयरफॉर यहाँ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज is usually is equal to the natural frequency. The frequency of the applied voltage is equal to the natural frequency of the circuit. So therefore thus resonance takes place. आपको पता है कि resonance take place करने के लिए जो natural frequency होनी चाहिए वो equal होती है to the resonant frequency, तभी हम कहते हैं कि resonance वहाँ पे होती है। So वही काम हुआ यहाँ पे भी, जो frequency of this AC source है वो equal बन जाती है to the resonant frequency of this circuit. So therefore the resonance takes place good, but यहाँ पे आप difference देखोगे, the difference between the series LC or that resonant circuit and parallel resonant circuit में क्या था। अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था at resonance the current in the series LCR circuit was maximum while as the impedance was minimum। ग्राफ में जैसे ऊपर की कर्व बनी थी like this, graph was like this, लेकिन यहाँ पे आप उल्टा देखोगे। So therefore at resonance, यानी कि यहाँ पे ये जो this frequency is now called as parallel resonant frequency which is same as the natural frequency. So therefore at this frequency our current is zero, यानी जब circuit ये frequency show करेगा, when our parallel resonant circuit will show this type of frequency, यहाँ इस frequency पे करंट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। करंट जीरो बनने का मतलब क्या है, द इम्पीडेंस इज द मैक्सिमम। सो देयरफॉर इट इज टोटली वर्किंग इन रेसिप्रोकल विद दैट ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज एंटी रेजोनेंस सर्किट भी हम कहते हैं, बिकॉज वहां पे एक्चुअली एट रेजोनेंस द करंट बिकम्स द मैक्सिमम इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बट रिमेंबर इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द करंट इज द मिनिमम। वहां पे इम्पीडेंस मिनिमम है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है, एज शोन बाय दिस ग्राफ। यहाँ पे आप देखो दिस इज ग्राफ बिटवीन द करंट एंड दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा यहाँ मैंने देखा दिस इज एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। अब थोड़ा सा करंट क्यों मैंने वहां पे दिखाया है, बिकॉज इन रियलिटी जो इंडक्टर है, इंडक्टर कुछ करंट एट रेजोनेंस पास करता है, तो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया है, बट ऑलमोस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू जीरो। सो देयरफॉर एट रेजोनेंस the current in a parallel resonant circuit becomes zero while as the impedance becomes the maximum. So therefore remember this is the parallel resonant circuit which works against to that of our series resonant circuit. अगर आपको याद होगा वहां पे मैंने आपको बोला था that series resonant circuit is also called as acceptor circuit, क्योंकि वो किसी एक फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करता है। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट, इसको रिजेक्टर सर्किट हम बोलते हैं। या ट्रांसमिटिंग स्टेशंस में ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में हमें कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं करनी है, सो देयरफॉर उस फ्रीक्वेंसी को हम मैच करते हैं विद दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर LCR, दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सो एट दैट टाइम रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड दिस टाइम दिस पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट्स दैट फ्रीक्वेंसी, ये उसको रिजेक्ट करता है बिकॉज करंट जीरो बन जाता है, इंपीडेंस मैक्सिमम, वो फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होती है, बाकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं होती है। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी दैट आवर दिस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज ऑलमोस्ट वर्किंग अगेंस्ट आवर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एंटी रेजोनेंट सर्किट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिल्टर सर्किट भी हम इसे कहते हैं, बिकॉज ये भी फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, फिल्टर करता है। यानी किसी फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी अगर हमें नहीं चाहिए तो ये उन फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, वाइंड ऑफ करता है और बाकी फ्रीक्वेंसियों को अलो करता है ट्रांसमिट करने के लिए। सो दिस वाज योर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। थैंक्स।